Ah, hello, hello. Good evening, sir. Voice is not clear. Good evening, sir. Good evening. Your voice is not clear. Ah.
से पहले से सीखा होंगे। पता नहीं। Hello. Saroj. हेलो। Yeah. Sir, have you Katiyar sir? Can you hear me? Sir, Katiyar sir, can you hear me?
Sir, Katiyar sir, can you hear me? Hello? Sir, in this लाइव होगा। ओके 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 हाँ हाँ hello, just बट yes, your video is coming now. Video is coming now. No. Sometimes it's coming and going. So please download in. ओके I will download. I will download it. So take some time. Okay. Sir, can you hear me? Anna. Praveen. Okay. 1 minute, Praveen. There is some technical problem. Okay, Anna, no problem. I'll take your time. Sir, Katiyar sir, can you hear me?
Sir, can you hear me? So, okay, so the speaker is going to join because some technical problem is there. So, Jess is trying to solve it. And soon we will start. Yes. Sir, Katia sir, can you hear me? Okay. So he's connecting. Hopefully it will connect within 1-2 minutes. Then we will start. So, Katia sir, please unmute yourself. So, can you hear me? मेरा आवाज आ रहा है क्या? Hello. इसमें प्रॉब्लम हो इसमें Yeah. Sir, Katia sir, can you hear me? इसमें आवाज आ तो रही है आप क्या? Yes. इसमें आ रही है। Your voice is coming. आ रही है तो आप
Hello. Hi. Hello. Hello. Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear. Okay. So, can you start your video, or without video you Yes. can? Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. So we are sorry for delay, as there was some technical problem. So now it is solved. Yeah. So BS Katiyar sir has joined. On behalf of Satishodak, Yeah. I welcome you all, Okay. both in Zoom meeting and on Facebook, participants across India. Satishodak is a platform where academicians, activists, and writers can exchange their ideas and have a democratic dialogue towards critical thinking and liberative politics. So, Satishodak has started a lecture series on Shudra intellectual, anti-caste Shudra intellectual traditions. Part of this lecture series, we have been organizing lectures on each thinker from the Shudra community, and so far we are able to organize 13 lectures. This is the 14th lecture. So in this lecture series, the aim of the lecture series is to identify the anti-caste thinkers from the Shudra communities across India and engaging with their ideas, contribution, writings, their life and struggle. So with this objective, we invited Bhagwan Swarup Katiyar sir, so to deliver a lecture on Ram Swarup. Yeah. And we are happy. Arma. Bhagwan Swarup Katiyar ji is a public intellectual and writer who has been writing on Ram Swarup Verma. He also writes regularly in Hindi, and he speaks on many public forums and is very concerned towards the marginalized communities. So we are happy to have Bhagwan Swarup Katiyar ji, and he will speak in detail Ram Swarup Verma's life, struggle, his contribution towards anti-caste thinking, and the relevance of Ram Swarup Verma ji ideas to the contemporary world. So with this, now I invite Bhagwan Swarup Katiyar ji to deliver a lecture. So after lecture, we will have a question answer session. Okay. Sir, आवाज आएगा? Katiyar ji, Yeah. yes, please. Okay. हेलो, आवाज आ रही? Yes. हेलो, आवाज आ रही Yes, ना? yes. Are you hearing me? Yes, we Are are you able to hear. hearing me, please? Yes. Okay. Good evening, friends. I'm very much happy to deliver my lecture on Ram Swarup Verma, the great authority on social justice and liberation of the repressed class. दोस्तों, उत्तर भारत के बड़े पुरोधा, वंचित वर्ग के मुक्ति के पुरोधा, अम्बेडकरवादी, समाजवादी राम स्वरूप वर्मा पर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं अपनी बात उन पर एक अपनी कविता से शुरू करूंगा, उसके बाद मैं उनके जीवन, उनके स्ट्रगल, उनकी आइडियोलॉजी पर बात करूंगा। उन पर मैंने कविता लिखी थी, खिलाफ हवाओं का माझी, महामना राम स्वरूप वर्मा के प्रति। बहुत मुश्किल होता है हवाओं का रुख बदलना और खिलाफ हवाओं पर सवार होकर अपने समय के समंदर को पार करना। बहुत मुश्किल होता है हवाओं का रुख बदलना
और खिलाफ हवाओं पर सवार होकर समय के समंदर को पार करना बहुत मुश्किल होता है। सोई हुई कौमों को जगाना और गुलामों को गुलामी का एहसास कराना, उनकी गुलामी का एहसास कराना, खासकर उस समय जब सोई हुई कौमें गुलामी की नींद के सुख में डूबी हों। पर तुमने यह सब काम किया, तुमने राजनीति को हवा का रुख बदला और तुमने छेड़ी संभव बराबरी बनाम पूर्ण बराबरी की बहस। तुमने नारा दिया, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। तुमने सम्मिलित सरकार में लाख का बजट पेश कर अर्थशास्त्र का नया इतिहास रचा। विधानसभा में तुमने राजनीति की विरासत पर खड़े किए सवाल और विधायकों के भत्ते बढ़ाए गए जाने का सदैव किया विरोध। बढ़े हुए भत्ते स्वयं नहीं लिए कभी। विधानसभा में 1967 में हिंदी में बजट पेश करने की शुरुआत की थी तुमने। सरकार के कामकाज में हिंदी में ही होंगे यह बीड़ा भी तुम्ही ने उठाया था और तुम्ही ने ही सरकार के मंत्री होने के बावजूद हिंदी के समर्थन में आंदोलन करते हुए गिरफ्तारी देकर राजनीति का नया इतिहास लिखा। तुमने ही किया था 6.5 एकड़ जोतों के किसानों का लागान माफ, जन सरोकारों के लिए जिंदगी करते रहे संघर्ष और झेली हाँ हेलो, आवाज आ रही? आर यू हियरिंग मी प्लीज? हेलो। हाँ सर कहिए सर। आप कहिए सर, आप कहिए सर। ठीक। सामाजिक न्याय के योद्धा, जन सरोकारों और मूल्यों की राजनीति के नायक, तुम्हें उत्तर भारत का लेनिन और अंबेडकर कहा गया। राजनीति के इतिहास में ईमानदारी, सादगी और सिद्धांतों की जब भी होगी बात, तुम आओगे याद बार बार। एक बेमिसाल मिसाल के तौर पर संशय और भटकाव के गहन अंधेरों में तुम्हारा साहित्य, तुम्हारे विचार हमें देंगे प्रेरणा, ताकत और रोशनी। कहिए सर आप। तुमने कहा था। कहिए सर, आप कहिए सर। ठीक, ओके। तुमने कहा था कि किसान से कुशल अर्थशास्त्री और कुशल प्रबंधक नहीं हो सकता कोई, क्योंकि सूखा, बाढ़, किसी भी संकट में किसान नहीं बदलता है अपना पेशा। किसान के बेटे के रूप में तुमने राजनीति में इसे सिद्ध भी किया। तुमने एक थीसिस दी, तन की भूख रोटी, मन की भूख इज्जत। दोनों के समाधान से बनता है पूर्ण बराबरी का आदर्श समाज, जो हमारे समय का अभीष्ट है। तुमने हमें जगाया, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। यकीन मानो, जब हम सोएंगे नहीं, अब हम सोएंगे नहीं। सोई हुई कौमें जब जाग जाती हैं फिर सोती नहीं। कौमें को गुलामी से मुक्त कराए बगैर। ये उन पर एक कविता की। अब मैं उनके जीवन और उनके संघर्ष और उनके आइडियोलॉजी पर बात करूंगा। दोस्तों, रामस्वरूप वर्मा का सानिध्य मेरा बहुत घनिष्ठ रहा है। वो मेरे परिवार के भी थे और मेरा घर उनके आवास से बहुत निकट था। मेरा ऑफिस उनके प्रवास से लगा हुआ था। मैं अक्सर हर दिन शाम को जब तक वो जीवित रहे, मैं उनके यहाँ जाता था, उठता था, बैठता था, उनसे बातें करता था। वो मेरे जीवन में घुल के गए थे। उनके विचार, उनकी शख्सियत, मैंने जो भी जाना, जो भी समझा उनको, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 22 अगस्त 1923 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गौरीकरण गांव में रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म हुआ था, एक किसान परिवार में। वंश गोपाल उनके पिताजी का नाम था। 4 भाई थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे वर्मा जी। इन्होंने शुरुआती शिक्षा गांव में पाई।
फिर हाई स्कूल और इंटर को घराया से किया। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से इन्होंने बीए और एमए लिंग्विस्टिक में किया और 1949 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक से एमए करने के बाद वो सीधे राजनीति में आए। उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और से क्वालिफाई किया, रिटन में हिस्ट्री में टॉप किया, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि उन्होंने तय कर रखा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी। ये एक बड़ी बात थी कि किसान परिवार का एक बेटा, एक लड़का जिसको कौड़ी कौड़ी जोड़कर उनके माँ बाप ने पढ़ाया हो, जिसके लिए रोजगार के विपुल साधन हो, आईएएस की नौकरी, प्रोफेसरी, वकालत, सबको लात मारकर उन्होंने राजनीति को अपना पेशा, राजनीति को अपना उद्देश्य बनाया। डॉक्टर लोहिया रामसूर वर्मा की इस निर्णय से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि ये जोखिम लेना जिंदगी में, इस तरह का निर्णय लेना बहुत बड़ी बात होती है। और रामसूर वर्मा उसी दिन से डॉक्टर लोहिया के वैचारिक मित्र हो गए। वर्मा जी ने पहला इलेक्शन 1952 में भोगनीपुर क्षेत्र से रामस्वरूप गुप्ता के खिलाफ, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रामस्वरूप गुप्ता के खिलाफ लड़ा। तब उनकी उम्र कुल 26 वर्ष की थी। उन्हें बहुत सारे प्रलोभन दिए गए कांग्रेस की तरफ से, उस रामस्वरूप गुप्ता की तरफ से, कि देखो तुम अभी बच्चे हो, गरीब किसान के बेटे हो, तुम्हें ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति में बड़े खर्चे हैं, बड़े जोखिम है, मैं तुमको प्रोफेसरी दिलवा सकता हूँ, बड़ी नौकरी दिलवा सकता हूँ। वर्मा जी ने कहा कि देखो भाई, किसानों के बेटों को भी विधानसभा में जाने का हक है। जब तक किसान के बेटे विधानसभा में नहीं जाएंगे, किसानों की बात वहां तक नहीं पहुंची। और वर्मा जी चुनाव लड़े और कुल 4000 वोटों से हारे। फिर 1957 में वर्मा जी ने उन्हीं रामस्वरूप गुप्ता को भारी वोटों से पराजित किया और विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में रामस्वरूप वर्मा की उपस्थिति एक इस तरह थी, इस तरह बोलने वाले, बेबाक, संजीदा, विनम्र और आंकड़ों के बादशाह थे, पढ़ते थे, अध्येता थे और किसान पृष्ठभूमि होने के नाते उनका मस्तिष्क बहुत ही खुला था। एक बड़ी विचारणीय बात यह है कि अगर राजनीति में ही उनकी रुचि थी और वो सत्ता की राजनीति करना चाहते तो कांग्रेस में भी जा सकते, लेकिन उन्होंने विपक्ष को चुना और सोशलिस्ट विचारधारा को चुना। वर्मा जी को इस बात का बड़ा मलाल था कि वो अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार नहीं हो सके। वो विद्यार्थी थे, किसान परिवार से थे, शायद पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूदने का साहस न कर पाए, इसका उन्हें मलाल था। और इस मलाल को या इस क्षोभ को दूर करने के लिए उन्हें राजनीति को चुना कि अब हम राजनीति में जाकर देश की सेवा करेंगे, और वो राजनीति में आए। वर्मा जी ने कई सारे ऐसे चमत्कारी काम किए जिनकी एक मिसाल है और जिसका एक इतिहास। 1967 में जब सम्मिश्र सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, वर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और ये लोहिया की सिफारिश थी कि चाहे किसी को लो या न लो, रामस्वरूप वर्मा को जरूर मंत्रिमंडल में लो, उनकी योग्यता और उनकी क्षमताओं का सरकार उपयोग करे, और उन्हें लिया गया। वर्मा जी की इच्छा ये थी कि वो शिक्षा विभाग या कृषि विभाग मिले तो किसानों का कुछ भला करें और शिक्षा जगत में कुछ परिवर्तन करें। लेकिन क्योंकि सम्मिश्र सरकार थी, उसमें कांग्रेस और सोशलिस्ट दो दलों का तालमेल था, तो वहां पर कांग्रेस का वर्चस्व था, तो उन्हें वो विभाग नहीं मिले जो चाह रहे थे। उन्हें वित्त विभाग दिया गया ताकि वो जनता के संपर्क से टूटे रहें और लोकप्रियता न बढ़ा। ये सारी साजिशों के शिकार वर्मा जी हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें वित्त मंत्रालय मिला और वित्त मंत्रालय में उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को, इतिहास को बदल दिया। उन्होंने फायदे का बजट पेश किया। फायदे का बजट इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक ऐसी रूढ़ी बन गई थी कि जो सरकार एक बार घाटे में आती हैं तो वो मुनाफे में नहीं आती, फायदे में नहीं आती। हाँ, उनका घाटा कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन वर्मा जी ने एक ऐसी मिसाल रची कि फायदे का बजट पेश किया और फायदे का बजट पेश करते ही विश्व के अर्थ जगत में तहलका मच गया। बीबीसी लंदन, ढेर सारे
मीडिया जगत के चैनल्स और मीडिया सेंटर्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने वर्मा जी से संपर्क किया कि वर्मा जी ये चमत्कार कैसे संभव हो। वर्मा जी के इंटरव्यूज की लंबी कतार लग गई, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज उनके आने लगे और ये एक चमत्कार हुआ। इसके बावजूद उन्होंने कोई बजट में कटौती नहीं की। उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ाया और किसानों का 6.5 एकड़ वाले किसानों का लगान माफ किया, जो सोशलिस्ट पार्टी का नारा था। ये सारे चमत्कार उन्होंने किया और एक और का चमत्कार किया उन्होंने कि हिंदी में बजट की शुरुआत उन्होंने की। अभी तक अंग्रेजी में बजट पेश किया जाता है। उन्होंने सचिवालय से, विधानसभा के सचिवालय से अंग्रेजी के टाइपराइटर हटा दिए। कोई अंग्रेजी का टाइपराइटर टाइप नहीं करेगा, सारा काम हिंदी में शुरू। और एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने और भी किया कि बजट में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का जो विवरण था वो नहीं आता था, कितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं और कितना पैसा। ईश्वर वर्मा जी ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, ये कैसा राज है जिसको यही नहीं पता कि उसके कार्यालय कितने हैं और उस पर कितना पैसा है। उन्होंने वॉल्यूम 6 जोड़ा और उसमें ये विवरण पेश किए। इसी बीच वर्मा जी जब वित्त मंत्री थे तो दिल्ली में एक सरकारी मीटिंग में गए और वहीं पर राजभाषा हिंदी का आंदोलन चल रहा था। सोशलिस्ट पार्टी हिंदी के समर्थन में शुरू से संघर्ष कर रही थी। वर्मा जी उस आंदोलन में शामिल हुए, उस जुलूस में शामिल हुए। बीइंग मिनिस्टर, एक प्रदेश सरकार के मंत्री होते हुए वो जुलूस में शामिल हुए, प्रतिरोध में शामिल हुए और उनकी गिरफ्तारी हुई। ये अपने तरह का एक नया इतिहास था। तिहाड़ जेल में रहे और वहां से उन्होंने कुछ दिन तक सत्ता करी। इस तरह वर्मा जी का ये था, संघर्ष का जीवन था। वर्मा जी 6 बार विधानसभा पहुंचे। लगभग 50 साल के अपने जीवन में उन्होंने सबसे अधिक गैर सरकारी विधेयक पेश किए। वर्मा जी ही वो शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र की मांग की, जिसे बहुत बाद में स्वीकारा गया, लेकिन स्वीकारा गया। इसके बाद वर्मा जी कई बार जेल गए। जनता के किसानों के आंदोलन में वो बांदा जेल, लखनऊ जेल, कानपुर, उन्नाव कई बार जेल गए और कई वर्षों तक उन्होंने इस तरह की यातनाएं सही। इसके बाद होता यह है कि वर्मा जी ने लोहिया से एक बहस शुरू की कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जिस समाजवाद की हम परिकल्पना कर रहे हैं वो समाजवाद कैसा होगा। मान लीजिए आर्थिक बराबरी आ भी गई तो ये ऊंच नीच, धार्मिक ऊंच नीच, जात पात की बराबरी के रहते हुए समाजवाद कैसे आएगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अगर पूर्ण बराबरी संभव नहीं है तो संभव बराबरी तो संभव है, हम संभव बराबरी की बात कल्पना करें। वर्मा जी ने कहा, भाई डॉक्टर साहब ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। बराबरी तो पूर्ण ही होती है, संभव बराबरी तो कोई शब्द ही नहीं, संभव बराबरी तो कोई फिनोमिना है ही नहीं। प्रकृति में तो गया तो गैर बराबरी है या पूर्ण बराबरी। बराबरी तो पूर्ण होगी और हमें जाति पात ऊंच नीच की बराबरी, गैर बराबरी को भी खत्म करना होगा आर्थिक गैर बराबरी के साथ। लोहिया थोड़ा झल्ला गए। उन्होंने कहा कि सारी समझदारी और सोचने का ठेका हमने शुरू किया है, तुम भी सोचो। और वर्मा जी ने उसी दिन से हर तरह की गैर बराबरी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने जात पात, उन्होंने उठना बैठना, खान पान, आचार व्यवहार, सब क्षेत्रों में बराबरी के लिए संघर्ष करने के लिए बीड़ा उठाया और अध्यक्ष संघ की स्थापना की। यही नीची टकराहट में सोशलिस्ट पार्टी में 2 गुट हो गए। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला के आयोजन के पक्षधर थे और उन्होंने रामायण मेला के लिए पहल की। इसके लिए वर्मा जी ने और उनके साथी महाराज सिंह भारती ने विरोध किया। डॉक्टर साहब ये उचित नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में हम धार्मिक आयोजनों का करेंगे तो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी हमें बराबरी देनी होगी और ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। लोहिया ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन एक गुट था
समाजवादी गुट जो इसके पक्ष में था, और लोहिया और रामसू वर्मा और महाराज सिंह भारती और उनके साथी इसके खिलाफ। इसी बीच में कुछ दिनों के बाद डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया और सोशलिस्ट पार्टी विभाजित हो गई। एक दो गुट अलग हो गया, जिसमें रामसू वर्मा, महाराज सिंह भारती जो बैकवर्ड दलित के पक्षधर थे, सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग, वो अलग हो गए और एक सवर्णवादी गुट अलग हो गया। वर्मा जी ने इसी बीच में अर्जक संघ की स्थापना की 1969। अर्जक संघ का मकसद था कि कमेरों का संगठन बनाया जाए। उन्होंने कहा समाज में दो ही वर्ग हैं, एक लुटेरा एक कमेरा। लुटेरे की संख्या सिर्फ 10% है और कमेरों की संख्या 90%। ये अगर कमेरे 90%, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक संगठित हो जाए, और यही असली सरबराह भी है, यही मेहनत कश है, ये संगठित हो जाए तो हम हमेशा सत्ता में रहेंगे और अपनी मनमाफिक सरकार बनाकर अपने मनमाफिक जो काम है उनको पूरा करें। और अर्जक संघ की स्थापना की और उसमें सामाजिक क्रांति, अर्जक संघ एक सामाजिक क्रांति, सामाजिक बदलाव का प्लेटफॉर्म बना। उन्होंने अलग एक अपना दल बनाया, पहले उसका नाम सोशलिस्ट दल रखा, बाद में वो सोशलिस्ट और वहाँ के बिहार के साथ मिल करके सोशलिस्ट समाज दल बनाया और फिर वर्मा जी सोशलिस्ट समाज दल से चुनाव भी लड़े। इसके बाद जो है वर्मा जी, उसमें एक वर्मा जी बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे, उनके विचारों के अनुयायी थे, उनके विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उनकी सोच में मौलिकता थी। उनकी सोच में इन सारे लोग थिंकर्स का कोई छाया नहीं दिखती थी, लेकिन हाँ इनके विचारों से सहमत थे। बुद्ध दर्शन में एक चूक हो गई थी। रामसू वर्मा जी का कहना था कि बुद्ध ने दर्शन दिया जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था और बहुत वैकल्पिक ये व्यवस्था थी सामाजिक थी, लेकिन त्योहार नहीं दिए। जब त्योहार और संस्कृत नहीं, मतलब उन्होंने वैकल्पिक संस्कृत नहीं बना पाए। ये समय का अभाव रहा या इसके बाद के लोगों का ही जिम्मेदारी थी, जरूरी नहीं कि सब हर काम एक आदमी करे। अगर बुद्ध दर्शन के साथ साथ एक वैकल्पिक संस्कृति बन गई होती तो हम ये ब्राह्मणवादी संस्कृति के हम सहारे न रहते, उन पर डिपेंड ना होते, तो हमारा दर्शन, हमारा चिंतन तो बदल गया, हम बौद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, लेकिन हम ब्राह्मणवादी संस्कृति में ही बने रहे। वही तीज त्योहार वही संस्कार हम अपनाते रहे। फिर वर्मा जी ने अर्जक संघ बना करके इनमें बदलाव किया और उन्हें धर्म संस्कार भी बदले और त्योहार भी बदले। जैसे उन्होंने अम्बेडकर के जन्मदिन को चेतना दिवस नाम दिया, तो उन्होंने शादी की पद्धति बदली। उन्होंने कहा कोई भावनाएं और ये नहीं पढ़ेंगी। उन्होंने प्रज्ञापत्र बनाया जो वर वधू पढ़ेंगे और वहाँ पर 4 लोग जो होंगे दस्तखत करेंगे, यही उसका वो हुआ। इसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि ये मरने के बाद जो संस्कार होता था उसका बहिष्कार किया समाज में, ताकि इसमें कोई किसी को भोज नहीं देगा। एक तो आदमी मर जाता है, उसके ऊपर ऐसी शोक का बोझ, उसके ऊपर दूसरा आर्थिक बोझ डाला जाए। उन्होंने शोक सभा का आह्वान किया कि लोग मरने के बाद शोक सभा करेंगे और उसमें छोटी चाय वाय पानी पिला करके खुश हो जाएगा, कोई भोजन और भोज का वो नहीं करें। इस तरह उन्होंने संस्कार, सामाजिक संस्कार और त्योहारों का भी बदलाव किया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि सोशलिस्ट मूवमेंट के तत्कालीन एक महत्वपूर्ण शख्सियत चौधरी महाराज सिंह भारती थे, जो वर्मा जी के बहुत अभिन्न मित्र थे। और ये कहा जाए कि ये दोनों की जोड़ी मार्क्स एंजल्स की जोड़ी थी। दोनों ने मिलकर सोचा और उन्होंने मिलकर बहुत लिखा और बदलाव की बहुत सारे संघर्ष किए। महाराज सिंह भारती वो शख्सियत हैं जो मेरठ से एक किसान जाट नेता थे, वो किसान परिवार से थे और उन्होंने उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता शहनवाज, जो आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट रहे थे सुभाष चंद्र, उनको चुनाव में हराया। महाराज सिंह भारती की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने दुनिया में घूम घूम कर किसानों की समस्याओं, किसानों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, उन पर खूब काम किया और खूब लिखा। उन्होंने उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब सृष्टि और जो
समाज और दुनिया के उद्भव और उसके विकास के बारे में है। वो डार्विन की जो किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है, उसी की टक्कर की वो हिंदी में एक ऐसी किताब है जो आम आदमी को समझ में। उसके लिए भारती जी ने 6-7 साल तक बहुत बहुत जम के कहा। इसके अलावा उनका और भी बहुत सारा लेखन है जिसका मैं जिक्र करूंगा। वर्मा जी और मारा सिंह भारती दोनों ही किसान पृष्ठभूमि से थे और लखनऊ का ये 4A पार्क रोड जो वर्मा जी का आवास था, ये यहीं पे दोनों का मिलना जुलना होता था। हर कोई इस बात के लिए लालायित रहता था कि मारा सिंह भारती और रामस्वरूप वर्मा ये मार्क्स एंड योगी से उनकी मुलाकात हुई, इससे वो रुचिकृत हो गए। मारा सिंह भारती निहायत हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति थे। उनके हंसी के ठहाके और लतीफे लोगों के जहन में आज भी हैं, लेकिन वो इतने प्रबल वक्ता थे कि जनता की दिलों पर इतना असर डालता था उनकी भाषण, उनकी स्पीचेस कि लोगों के जहन और दिल दोनों में उतर जाते। वर्मा जी की एक और विशेषता थी कि वर्मा जी ने हमेशा इस बात का तकाजा किया और कहा विधानसभा में कि देखिए, हम उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो गांव में रहता है, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, जो असुविधाओं में जीते हैं। इसलिए हमें उतनी ही सुविधाएं लेने का अधिकार है जितनी हमारी जरूरत है। हमें विलासिता की सुविधाएं नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम उनके प्रतिनिधि, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, उनको तो वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि हम वो सारी सुविधाएं लें जो हमारे समाज के पास नहीं। इसलिए उन्होंने कभी भी विधायकों के भत्ते बढ़ाए जाने का जो सहमत नहीं जताई, हमेशा विरोध किया और जो महंगाई जो भत्ते बढ़ाए गए उसको कभी उन्होंने नहीं लिया। एक अनूठी मिसाल उन्होंने अपने जीवन, राजनीतिक जीवन में पेश की। उन्होंने एक काम ये भी किया कि जब वो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने एसी तो खैर कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, पर्दे भी हटवा दिए। उसने कहा लोकतंत्र पर्दों में नहीं रहता, जनता के लिए दरबार खुला है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, जनता पर्दे लेकर डरेगी तो पर्दे नहीं लगेंगे, जनता हमारे बीच आएगी। ये उनका सोच था। एक और काम वर्मा जी ने ऐसा किया, ये आश्चर्य की बात है, आजादी के बाद भी अंबेडकर साहित्य पुस्तकालय में रखे जाने पर प्रतिबंध था। इसको ये बात वर्मा जी को बहुत चुभी। उन्होंने अध्यक्ष की तरफ से इस पर मुकदमा किया और ललई सिंह जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय विरोधा थे, उन्होंने ये मुकदमा लड़ा और हाई कोर्ट ने आदेश दिए। इसके बाद अंबेडकर साहित्य सरकारी पुस्तकालयों में रखा गया। ये स्थिति थी हमारे देश की, जिस व्यक्ति ने अम्बेडकर संविधान बनाया उसके साहित्य पर। अब हम आते हैं वर्मा जी के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन पर। वर्मा जी समाजवादी जनतांत्रिक सोच के व्यक्ति थे और इसलिए समाज और देश पर हर स्तर पर वो जनतांत्रिकरण चाहते थे। चौमुखी बराबरी के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर की तरह व्यक्तिवादी राजनीति और न्याय पूजा की घोर विरोधी थे। वह राजनीति को कुशल राष्ट्र प्रबंधन का विज्ञान कहते थे, जो देश को खुशहाल, समृद्ध, स्थिर, शांति और न्याय प्रिय व्यवस्था दे सके। राज्य कोई मुनाफे का उद्योग नहीं है। वो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के पक्षधर थे, जिसमें राज प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि जनता को वो सारी सुविधाएं दे जो जनता की जरूरतें हैं। इसलिए वर्मा जी का कहना था कि कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के तहत शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, वाह सुरक्षा, न्याय पाने का जनता का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक और कानूनी दायित्व है। वो ब्रिटिश
मॉडल जो था मौलिक अधिकारों का, उसके खिलाफ जो हमारे यहाँ है, तमाम मौलिक अधिकारों का रोज हनन होता है, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई संज्ञान नहीं लेते। तो वर्मा जी अम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे और वर्मा जी से वो अमेरिका की तरह मौलिक अधिकारों का प्राविधान चाहते थे, यहाँ जनता को अपने मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोर्ट जाने का हक है और सरकार के खिलाफ उसमें दंडनीय अपराध। ये था वर्मा जी का सोच। वर्मा जी डॉक्टर अंबेडकर की तरह शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, कृषि, बैंक और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण चाहते थे, ताकि देश के संसाधनों का अधिक से अधिक देश हित में उपयोग हो और आज की तरह उनका अनुचित दोहन और दुरुपयोग न हो सके। वे रोजगार और न्याय की गारंटी के भी पक्षधर थे। किसी के साथ हुए अन्याय के लिए किसी नागरिक को कचहरी और पुलिस के चक्कर न लगाने पड़े, न्याय उसके दरवाजे पे मिले, और ये जिम्मेदारी कानूनन और संवैधानिक जिम्मेदारी राज व्यवस्था की हो। वर्मा जी इस तरह का सोचते थे और इस तरह के कानून बनाने के पक्षधर। नागरिक की गरिमा और सम्मान से ही देश का स्वाभिमान बनता है। स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर नागरिक ही देश की शान होते हैं और वही अपने श्रम और कौशल से देश की शान को बढ़ाते हैं। उनका मत था कि चुनाव सरकारी खर्चे पर हो, फंडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। भ्रष्ट चुनाव प्रणाली ही लोकतंत्र को भ्रष्ट करती है और कमजोर। अमेरिका की तरह देश की संस्थाएं और प्रतिष्ठान जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका, जांच एजेंसियां आज पूर्ण जनतांत्रिक हों और जवाबदेह हों, इस सरकार के दबाव में काम न करें। हर राजनीतिक दल का देश के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम हो, जिसमें देश की समस्याओं के समाधान और विकास का सर्वसंगत कार्यक्रम हो, सुझाव उनके हों। जिस दल के पास देश की समस्याओं का समाधान नहीं है, उन दलों का क्या उपयोग था? ऐसे दलों को तो पंजीकरण ही निरस्त कर देना चाहिए। हर दल के सांगठनिक चुनाव निर्धारित समय पर हों और ये चुनाव आयोग के देख रेख में। सांगठनिक चुनाव नहीं होंगे जब दलों में के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा, तो लोकतंत्र के बचाव में या लोकतंत्र के पक्ष में कैसे खड़े हैं? आज जो सारे दल कॉर्पोरेट की तरह हो गए हैं और धन उगाही के जरिए बन गए हैं, वर्मा जी चाहते थे कि ये सब ना हो। और नेता जो है जनता के बीच से है, संगठन चुने और हाई कमान संगठन हो, कोई नेता या व्यक्ति ना हो। व्यक्ति नेता कोई कैंडिडेट या प्रत्याशी ऊपर से ना थोपा जाए, नीचे से चुनता जाए। वो पूर्ण तरह से जनतांत्रिक थे। जब संगठन में और चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, तभी सामाजिक जीवन में और तमाम हमारे राजनीतिक व्यवहार में लोकतंत्र आ पाता है। चुनाव आयोग का काम केवल देश में चुनाव कराना भर ही ना हो, चुनावी और राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी चाहिए होता है। विपक्ष को कुचलना जैसे आज कुचला जा रहा है, आज देखा जा रहा है कि विपक्ष को किस तरह से, मतलब विपक्ष की आवाज सुनना ही उनके लिए मुश्किल है। विपक्ष को कुचलना लोकतंत्र और उसकी अंतरात्मा को कुचलना है, वर्मा जी कहते थे। विपक्ष ही एक तरह से सरकार को निरंकुश होने से बचाने और सकारात्मक और रचनात्मक आलोचना में से विपक्ष ही सरकार को पटरी पर लाता है। सरकार और विपक्ष के बीच एक स्वस्थ सौहार्द भी जरूरी है, जो आज बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। राजनीतिक रंजिशें राजनीति को आपराधिक बनाती है, वर्मा जी कहते थे। जन आंदोलनों का दमन, विपक्ष को डराना धमकाना लोकतंत्र की मूल भावना से विपरीत है। वर्मा जी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की वकालत करते थे। वे बाजार को सरकार के नियंत्रण में रखना चाहते थे, क्योंकि स्वतंत्र और मुक्त बाजार देश और देश की जनता पर इतना हावी हो जाएगा कि फिर वो सरकारें
उसी के अधीन होगी, जैसा कि आज चल रहा है। वो कहते थे कि उन्नत खेती और छोटे और मझोले उद्योगों का एक बृहद जाल इसमें फैलाया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन भी बढ़े और रोजगार भी। हमें देशी पूंजी को अधिक से अधिक विकसित करना चाहिए। विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम से कम रहनी चाहिए। देश में शोध कार्यों के जरिए देशी बाजार और विदेशी बाजार की जरूरतों के मुताबिक हमें उत्पादन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। बड़े उद्योग वही चीजें उत्पादन करें जो छोटे उद्योग ना बना पाए। समाजीकरण के सिद्धांत के अनुसार सरकार को पूंजी निवेश कर उद्योग स्थापित करें और कारखाने के मजदूर अपने उत्पादन से सरकार का पैसा वापस कर कारखाने के मालिक बने और वो कारखाने को चलाएं। उसके मुनाफे से कारखाने को समृद्ध करें और अपने वेतन में वृद्धि करें। जब ऐसा होगा तब लगेगा लोगों को कि देश उनका है। जब नागरिक को यह लगे कि देश उसका है तो नागरिक भी देश के लिए मर मिटने को तैयार होता है। देशभक्ति तभी पैदा होती है। वर्मा जी की यह मानना था कि कोई भी तकनीकी अंतिम नहीं होती। तकनीकी के बदलाव के साथ साथ हमें बचत चलना होगा। परिवार से लेकर केंद्रीय सरकार तक बचत के बजट बनाकर अरबों रुपए की आंतरिक पूंजी जुटाई जाए और फिर उस पूंजी द्वारा उत्पादन और निर्माण की तकनीकी का विकास करते हुए जनसाधारण की को उन्नत तकनीकी देकर उत्पादन लागत घटाई जाए और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। ये वर्मा जी का इकोनॉमिक थिंकिंग थी। हमें जनसाधारण की जरूरतों को पूरी करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण एवं उत्पादन बड़े स्तर पर करना चाहिए। आंतरिक पूंजी जुटाना और लगातार उत्पादन निर्माण की तकनीकी में सुधार करना ही देश के विकास की कुंजी है। दूसरी विश्व युद्ध में मात खाए जर्मनी और जापान जैसे पिछड़े देश कोरिया और ताइवान इसी रास्ते पर चलकर शिखर पर पहुंचे हैं। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया भी विकासशील देश से अब विकसित देश हो गए हैं, जबकि हम और गिरते गिरते इस स्तर पर आ गए हैं कि आज हमारे ऊपर 565 बिलियन डॉलर का कर्ज है। जबकि देश आजाद हुआ था तब हमारे पास एक पैसे का कर्ज नहीं था और रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर, रुपया और डॉलर बराबर। आज रुपया 75-80 रुपए, डॉलर 75-80 रुपए के बराबर है। ये गिरावट की स्थिति है। बैंक, बीमा, डाक घर, प्रोविडेंट फंड और बॉन्ड जहां जनता का पैसा जमा होता है, सरकार उससे कर्ज लेती है और ऊंचा ब्याज देकर भारी राजस्व का व्यय बढ़ाया जाता है। वर्मा जी की एक नायाब योजना थी जो आज भी प्रासंगिक है और उपयोगी है, इंसानी बस्ती बसाओ। इसके तहत देश में पड़ी सरकारी वन भूमि, नदियों किनारे भूमि, ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर भूमिहीन, गरीब, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बसाया जाए, यह उनका कार्यक्रम था। इस इंसानी बस्ती में बिजली, सड़क और ट्यूबवेल की व्यवस्था सरकार करे। रहने के लिए एक मकान, छोटा सा मकान हो जिसमें रसोई घर, कमरा और शौचालय हो, स्नान घर हो और सामने थोड़ी सी जमीन छोड़ी जाए जिसमें वो अपने पशु और पेड़ वेड़ लगा सकें। और ये मकान उनको बेचने का हक नहीं होगा, पुश्तें दर पुश्तें उसका इस्तेमाल कर सकें। इनमें रहने वाले लोगों को पेशेवर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें 1.5 एकड़ जमीन दी जाए जिस पर खेती करें, फलदार पेड़ उगाएं और उनको तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाए जिससे वो छोटी मोटी जरूरत की चीजों का उत्पादन करें और उस उत्पादों को सरकार खरीदे और खरीद के बाजार में उसकी बिक्री करे ताकि उनका प्रोत्साहन मिले। और उन्होंने कहा कि इस बस्ती के निवासियों को एक शपथ पत्र भराया जाए जिसमें वो शपथ लेंगे कि वे जात पात धर्म ऊंच नीच छुआछूत को नहीं मानेंगे।
वही उन्हीं लोगों को इसमें बसाया गया। तो सबके साथ इंसानियत, भाईचारे और का व्यवहार करेंगे और इंसानी गरिमा को हर तरह की बराबरी का सम्मान करेंगे। वर्मा जी चाहते थे कि देश से बेकारी और बेरोजगारी का समूल उन्मूलन किया जाए। इसके लिए उनका विचार था कि जिंदगी की जरूरत की चीजें लोगों को निर्बाध से मिल सकें, इसके लिए उद्योग, छोटे उद्योग, छोटे उद्योगों का एक जाल विकसित किया जाए देश के अंदर। उनका कहना था कि 20 हॉर्स पावर तक के उद्योग निजी क्षेत्र में रहेंगे, जिनको उनका परिवार या उनके साझेदार का परिवार मिलकर चलाएंगे, उसमें कोई बाहर का मजदूर नहीं होगा। और सार्वजनिक उद्योगों में मजदूर होंगे और उसमें सार्वजनिक उद्योग में वही चीजें बनेगी जो छोटे उद्योग नहीं बना सकते, जैसे साफ बुद्ध चीज ये बड़े उद्योग ना बनाए, ये छोटे उद्योगों को काम दिया। छोटे उद्योगों को पनपने के लिए अवसर भी देने होंगे। छोटे उद्योगों का कोई बाहर का मजदूर नहीं होगा, उन्हें सिर्फ उनका परिवार और साझेदार परिवार ही मिलकर चलाएगा। मजदूर सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेंगे। उद्योगों के लिए प्रशिक्षण सरकार के स्तर पर मुफ्त में दिया जाएगा। कुटीर उद्योगों के उत्पाद भी सरकार खरीदेगी, इसकी बिक्री बाजार में सरकार के माध्यम से होगी। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए वर्मा जी का एक नया आविष्कार था। इस तरह से मौलिक चीजें सरकार आज के कभी भी लोगों राजनेताओं की सोच में नहीं आती। वर्मा जी से एक बार ये पूछा गया, वर्मा जी मुझे ये बताइए कि एक अच्छे राजनेता की गुण क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, पहली शर्त है इसकी, वो व्यक्ति संवेदनशील। जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, वो न तो देश की समस्याओं को समझेगा, न देश की जनता की दुख को समझेगा। इसके बाद उसको देश की समझ हो, देश की समस्याओं की समझ हो और देश की राजनीतिक सामाजिक जो जकड़ने हैं वो कैसे तोड़ा जाए, इसकी समझ। ये वर्मा जी की एक राजनेता के गुण के बारे में अवधारणा थी। भ्रष्टाचार के बारे में वर्मा जी का कहना था कि चोरी, टैक्स चोरी, मिलावट, रिश्वतखोरी, तस्करी आदि के अपराधियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली है। जब उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी तो फिर कोई भी व्यक्ति दुस्साहस नहीं करेगा जो रिश्वत ले या वो मिलावट करे। लेकिन आज ये सब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। किसानों के भूमि संबंधी विवादों के समाधान के लिए वर्मा जी ने एक नया सोच विकसित किया। उन्होंने कहा, किसानों और गांव की दो ही समस्या होती हैं जमीन संबंधी। कोई भी दबंग व्यक्ति किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है और वो दबंग व्यक्ति, वो कमजोर व्यक्ति उसे हटा नहीं पाता। 10-12 साल बाद उससे कानूनी हक ले लेता है। वर्मा जी ने कहा कि हम कब्जे के कानून को खत्म करेंगे। कब्जा, किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले वो और उसका मालिक बन जाए, ये कोई वैध चीज नहीं है, कोई न्याय संगत चीज। कब्जे के कानून को हम खत्म करेंगे। हम सिर्फ जो पुष्ट दर पुष्ट विरासत में मिली हुई संपत्ति है उसको वैध मानेंगे और जो खरीदी हुई जमीन है, जो जिसकी रजिस्ट्री है, उसी को वैध। अगर कब्जे का कानून खत्म हो जाए तो किसानों के, गांव वालों के 80% मामले विवाद खत्म हो जाएंगे। सांस्कृतिक और राजनीतिक चिंतन के वर्मा जी का स्पष्ट सोच था कि वो अनात्मवादी थे, बुद्ध के दर्शन से प्रभावित थे और कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी प्रभावित थे। उनका मानना था ये सृष्टि पदार्थ से बनी है, इसका चलाने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप चलती है अपने नियमों सिद्धांतों से। ईश्वर, देवता, ये सब इसमें उनका कोई ना यकीन था, न इसकी कोई वजह थी। उसके खिलाफ अपने सोच विचार में कहीं भी, हाँ, जीवन का हर क्षेत्र उनका चिंतन मौलिक और तर्कसंगत था। बुद्ध की तरह उनका आत्मा और परमात्मा में कोई यकीन नहीं था कि दुनिया पूरी सृष्टि पदार्थ से बनी है। पदार्थ की द्वंद्वात्मक गतिशीलता ही सृष्टि की उपज और निर्गत का कारण है। निर्गत का संचालन
कोई नहीं करता, स्वतः अपने नियमों से और सिद्धांतों से चलता है। संपूर्ण विज्ञान और सामाजिक दर्शन, दार्शनिक चिंतन का स्रोत या प्रकृति ये है। वर्मा जी चाहते थे कि देश की सारी की शिक्षा क्षमता परक हो और मानववादी हो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो और शिक्षा का उद्देश्य परक और वैज्ञानिक चेतना की संभावना हो। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता पैदा करना है। शिक्षा से अंधविश्वास और पाखंड का बहस किया जाए। समता मूलक संस्कृतियों का सम्मान हो, जैसे बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। इनमें एक सामाजिक बराबरी का कंसेप्ट है। बाकी रूढ़ियां तो हैं, उनसे लड़ा जाए, लेकिन इनमें सामाजिक बराबरी का। उन्होंने अर्जक त्योहार बनाए, जैसे बाबा साहब का जन्मदिन चेतना दिवस का नाम दिया। मरने पर हुई मवाद की जगह उन्होंने शोक सभा का प्रावधान किया। विवाह पर गुरुवधु विज्ञापन के जरिए ब्राह्मणवादी प्रतिष्ठ का फैसला किया। वर्मा जी ने हर क्षेत्र में रचनात्मक आलोचना के साथ साथ विकल्प दी। बगैर विकल्प के आलोचना द्वेषगत मानी जाएगी। आलोचना के लिए आलोचना का कोई मतलब नहीं होता। आलोचना का मकसद है बदलाव, समस्याओं के हल देना। यही था वर्मा जी का समग्र सोच, जिसे हमने कंसीव किया, परसीव किया। वो एक महासमुद्र थे। उनके उस समुद्र से एक बूंद निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी। मैं उनके सानिध्य में रहा, मैंने उनको पढ़ा, थोड़ा बहुत उन पर लिखा भी। यही है मेरी उनके प्रति अप्रोच और सोच, जो मन में वर्मा जी को समझा। महाराज सिंह भारती और वर्मा जी की कुछ किताबों की सूची है जिनका मैं जिक्र करूंगा। वर्मा जी की किताबों का नाम है क्रांति क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद की स्वपरीक्षा, अछूत समस्या और समाधान, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, ब्राह्मण में महा क्यों और कैसे, निरादर कैसे मिटे, अम्बेडकर साहित्य की जप्ती और बहाली, भंडाफोड़, मानववादी प्रश्नोत्तरी। उसी तरह महाराज सिंह भारती की किताबों की सूची है। उनकी किताबें हैं का नाम है सृष्टि और प्रलय, ईश्वर की खोज, धर्म का धंधा, महान भारत के बौने नेता, समाजवाद, दर्शन, विज्ञान और आचरण, कृषि क्रांति और किसान नेतृत्व, गन्ना चीनी समस्या और समाधान, भारत का नियोजित दिवाला, पाप पुण्य क्यों और कैसे, ब्राह्मणवाद की स्वपरीक्षा, साम्यवाद और कम्युनिस्ट पार्टियां, सिद्धांतहीन राजनीति। ये विपुल साहित्य उन्होंने लिखा है। उनकी अनुपस्थिति में उनका साहित्य हमारा नेतृत्व करता है। जब विचारधारा, वैचारिकी, उनका दर्शन, वैचारिक सोच ही हमारा मार्गदर्शन करता है। इसी वैचारिकी के जरिए हम वो बदलाव की लड़ाई लड़े जिसका सपना वो हमारे लिए छोड़ गए, जिससे लड़ते लड़ते वो दुनिया से विदा हो गए। और हर कोई हर लड़ाई, चाहे भगत सिंह हो, चाहे रामजू वर्मा हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो। अम्बेडकर भी कह गए थे कि हाँ, जो कारवा हम छोड़ गए हैं इससे अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत ले जाना। लेकिन उनके अनुयायियों ने, मायावती जैसे लोगों ने जो अम्बेडकर दुर्गत की है वो हमारे सामने है। साथियों, रामजू वर्मा के बारे में जो मैं समझ सका वो मैंने आपके सामने पेश किया। आपको अच्छा लगे, अच्छा है, इसको आगे बढ़ाइए। जय अर्जक, जय समाजवाद, जय मानववाद। Thank you, sir. Thank you very much. So you brought a very detailed life and struggle of Ram Swarup Varma ji. You also brought his writings, his role in politics. Yes. You also brought a debate between Lohia and Ram Swarup Varma ji.
You also brought the Yeah. combined work of Maharaj Singh Bharati and Ramswarup Verma ji, and the cultural vision of the Arjak Sangh from marriage to death. So how Arjak Sangh was alternative, how Arjak Sangh was creating an alternative cultural life to the majority of the masses. Yeah. You also brought the economic thinking of Ramswarup Verma ji. So it was really insightful. So there are participants also, but out of curiosity, I would like to ask 2 to 3 questions, then we will follow to others. Yeah. So was there any influence of Chandrika Prasad Jignasu, his life, writings, and his struggle on Ramswarup Verma ji? Was there any influence of Chandrika Prasad Jignasu? Chandrika His- Jignasu was very close to Dr. Verma. He used to come to his house, and Chandrika Jignasu was inspired by Ramswarup Verma. And his writing and his work is influenced by Ramswarup Verma, because Ramswarup Verma was senior to Chandrika Jignasu. He used to come into his house. I met him many times in Ramswarup Verma residence, Chandrika Jignasu. Okay, Ramswarup Verma ji was senior to Jignasu. Yeah. Okay, so He used to come. Chandrika Jignasu used to come. okay, Used to come to his residence. okay. So in Arjak Sangh, Chandrika Prasad Jignasu was part, or he was outside the Arjak Sangh? No, he was part. He used to write in Arjak Saptahik. His writings are published in Arjak Saptahik. Kamal Bharti, the modern writer, Dalit writer, used to come Chandra Jignasu ji, and Jignasu ji brought Kamal Bharti to get meet with Ramswarup Verma, introduced Ramswarup Verma. Okay. The second question is, Yeah. how Ramswarup Verma ji was working with Jagdev Prasad from Bihar? What was the collaboration? What was their activities? How did they collaboratively work? Yes, I am just going to tell you. After death of the Lohia, Socialist Party became ideological bankrupt. That there was no socialism like that. That was in period of Lohia. Then Jagdev Prasad departed from the Socialist Party, and he formed his party, Socialist Dal, and Verma ji formed Samaj Dal. Both were fighting for the cause which they were influenced in Socialist Party, working during the Socialist Party. Both, he had been, Jagdev Babu had been also the minister, as Ramswarup Verma had been the minister during FPD government. But being Dalit or backward leader, both were neglected by the politician, Saman politician, Ramswarup Verma in UP and Jagdev Babu in Bihar. But they were by nature fighting spirit. They have their mission for their community, for the people of downtrodden. They cannot sit silent. Verma ji continued his struggle for the depressed class, and Jagdev Babu continued his struggle in Bihar for the depressed class. He formed Socialist Dal, and Ramswarup Verma formed Samaj Dal. Both met and combined, connected, and discussed their issues, and
decided to form a Socialist Samaj Dal, All India Socialist Samaj Dal, and they started. After a few days of establishing the Socialist Samaj Dal, he was assassinated. Dev Babu was assassinated. Both were very close to each other ideologically and by nature and by spirit. Okay, anybody can ask questions. You can unmute and directly pose your questions. So meanwhile, what was the exact differences between Lohiya and Ramswarup Varmaji? What are the points? What are the important aspects of debate between Lohiya and Ramswarup Varmaji? Yes, I'm going to tell you. Once upon a time, I was sitting with Varmaji, and just in childish mood, I tell Varmaji that Lohiya has been frustrated in the last days. I told him, Varmaji has been his companion, his component of his politics, Lohiya. He disagreed with me and told me that, भगवान स्वरूप जी ये बताइए लोहिया क्यों फ्रस्ट्रेट होंगे? लोहिया के फ्रस्ट्रेशन की क्या वजह हो सकती है? He was never hunger of power. If he has hunger of power, he can join Congress. He was Congress. There is always welcome of Lohiya in Congress. He can anytime become the minister. Though he was not frustrated. He was against the Congress on those issues which were not pro-people, and Lohiya was build a strong opposition, and Lohiya was of the opinion that a good democracy requires a healthy opposition also. He criticized Nehru on many platforms. He criticized Congress continuously. 3 आने बनाम 12 आने की जो बहस थी लोहिया ने चलाई थी पार्लियामेंट में. He only once reached for 2 years in parliament, but he changed the angle of parliament discourse. He changed the thinking, parliamentary thinking. तो लोहिया में और वर्मा जी में कोई बेसिक जो डिफरेंसेस आया, जो डेविएशन आया, वो सिर्फ वही हिंदुत्व के उस एजेंडे को लेके आया. लोहिया जी ने कुछ किताबें भी लिखी, जैसे कृष्ण पर लिखी है, राम पर लिखी, तो उनका ये कहीं ना कहीं मोह था. और एक बड़ी आपको दिलचस्प बात बता दें, लोहिया जी ने द्रौपदी को अपना आदर्श स्त्री माना. द्रौपदी एक आदर्श स्त्री थी, द्रौपदी पर उन्होंने किताब भी लिखी. महाराज सिंह भारती और डॉक्टर रामसुब्बा वर्मा तब सोशलिस्ट पार्टी में ही थे. जब ये उन्होंने देखा, भारती जी को ये संज्ञान में आया और ये खबर अखबार में आई कि लोहिया ने द्रौपदी को आदर्श स्त्री कहा है, तो भारती जी ने कहा कि डॉक्टर पगला गया. ये वर्ड थे और ये वर्ड्स कम्युनिकेट हुए डॉक्टर लोहिया को. एक लोहिया का बड़ा कद था, उसमें पार्टी के नेता थे और महाराज सिंह भारती कैसे भी रहे हों, लेकिन ये शब्द तो नहीं अच्छे लगे. उन्होंने भारती जी को बुलाया, तो भारती तुमने ऐसा कहा. भारती तो विवाह को डर व्यक्ति थे. उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मुझे बताइए कि जो स्त्री अर्जुन को पसंद करती है, अर्जुन ने तीर उसको भेदन किया, अर्जुन को उसने वरमाला पहनाई और वो 5 पतियों के साथ बांध दी जाती है और वो उसका प्रतिरोध नहीं कर पाती. एक स्त्री 5 पतियों को से संभोगित हो, वो स्त्री आदर्श कैसे हो सकती? वो तो गुलाम हुई ना. लोहिया के पास इसका कोई जवाब नहीं.
तो इस तरह के कंट्राडिक्शन थे, जिसको लेके आप डेविएशन भी कह सकते हैं, ये अपना सोच भी सकता है। इस तरह के कंट्राडिक्शन थे। थोड़ा लीनियंसी जो थी लोहिया जी की हिंदुत्व के प्रति, ये जब वो पिछड़ों का आरक्षण के लिए सौम्य पामे 60 पिछड़े पामे सौम्य 60 ये सरकार ने बांधी गांठ, ये नारा भी लोहिया का ही था। आरक्षण 60% और बच्चों के आरक्षण के पत्थर लोहिया ही थे, और यही उनका नारा था, पिछड़े पामे सौम्य 60 संसोपा ने बांधी गांठ। लेकिन अब ये जो था, ये रामायण मेले के आयोजन को लेकर के और राम और कृष्ण के प्रति जो उनकी लीनियंसी दी, जबकि अपने को नास्तिक कहते थे, ईश्वरवादी नहीं कहते थे, लेकिन पता नहीं राम की मर्यादा और ईश्वर कृष्ण की मस्तिष्क को में पता नहीं क्या चमत्कार देखते थे जो उसके प्रति मोहित थे। और ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे। बाकी लोहिया भी बिल्कुल आप कह सकते हैं फकीराना अंदाज का जीने वाला व्यक्ति थे, कोई निजी संपत्ति उन्होंने भी नहीं बनाई। एक धोती दो गोटा पजामा में शादी जिंदगी हुई थे, जो वर्मा जी और मारा सिंह भारती जी थे। बहुत सारी साम्यताएं थी और बहुत सारा जो विचलन था वो जगह था। ओके, आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज चली गई। Yeah, no. I think हाँ, so. Praveen is there from Delhi. Rohidas is there from West Bengal. Ajit Saroj from UP. So there are people on Facebook also. So Praveen, would you like to ask? नहीं, मतलब डॉक्टर चंद्रा जी सर ने काफी अच्छा बात बोला है, मुझे सुनने का मौका मिला और सीखने के भी मौका मिला, तो आज मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। Okay. Ajit. Okay. Ajit, would you like to ask any question? Rohidas from West Bengal. Rohidas, would you like to ask any question? I think last question. No, I have no. Please. Hello. Yes. The lecture is very insightful. I am very much thankful to the to you, sir, because you have given a insightful lectures which encourage us for study more regarding this kind of this resourceful person or encouraging persons who have a lot of contribution to the society, our society. So I am thankful to you. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. One more. Ajit, would you like to ask any question? Ajit Kumar Saroj. I'm just curious, why in Bihar and Uttar Pradesh, while there are OBC politics, why they are not taking seriously Jagdev Prasad, Ram Sarup Verma, Maharaj Singh Bharati? I think the form of politics has become so commercial, you may say power oriented. During this time, when political parties are only hankering for power, they are not in mood or in mindset to change the society, bring the radical change.
Jagdev Babu, Ramsu Burma, and Dr. Ambedkar, they people were politicians of radical change. Dr. Ambedkar may continue as a minister if he likes, but in protest of Hindu Code Bill, he quit the cabinet. In the same way, Jagdev Babu and Ramsu Burma, because they are missionary politicians, and modern politics is not missionary. That politics is not of the value politics. This political crisis, how to come over this political crisis? There is manpower, money power, and so many tools are being used for getting power, obtaining power. Though still there are followers of Ramsu Burma and Jagdev Babu in UP and Bihar, still, and movement is continuing. Yeah. Anybody? Are there any English writings, books, articles on Ramswarup Vermaji? No, there is no any book, but Samyak Prakashan is going to translate his work in English and also going to publish all collective work of Maharaj Singh Bharati, first in Hindi, then in English. They are thinking in this direction, but there is no work in English. Okay, and Jagdev Prasad also. Oh yes, but we are trying to get it translated and published in English. Okay, okay. But do you think Arjak Sangh still exists, and what is the relevance of Arjak Sangh now? Arjak Singh is relevant always. Still there is disparity, social disparity, religious disparity. There is requirement and there is need of Arjak Singh. Social justice, injustice, there is social injustice. Arjak Singh will remain, will require need. Because Arjak Singh is a philosophy of egalitarian society, to bring equality in all fields, in all walks of life. And it will remain relevant till the society becomes egalitarian and equality based. As Ambedkar is relevant now, Ramsu Burma is relevant, and Arjak Singh is also. Okay. So now Arjak Sangh was spreaded into how many states? Only in Uttar Pradesh? In Uttar Pradesh, Bihar, Paschim Bengal और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु वगैरह में भी इसका असर था, जो साउथ में भी इसका इफेक्ट था, पश्चिम बंगाल में भी था. Okay, okay. So anybody? So on Facebook also many people are watching and they are appreciating the lecture. Where do we get Ramswarup Vermaji books, writings? No, you may obtain it from the Samyak Prakashan. Samyak Prakashan has published this. They are available in Melas, and directly you can write to him to purchase them. Okay. Pradeep Rawat, would you like to ask any questions, Lalta Prasad? No, sir. Okay. Okay. So I think there are no questions. It was almost 2 hours lecture.
it was always, great to listen the personalities who directly met Ram Swarup Varmaji, Chandrika Prasad, Jignasu, and have a organic relationship with their vision, Yeah. struggle, and writings. So it is happy to meet Bhagwan Swarup Katiyar ji. It is always, this lecture we are recording, and this lecture immediately available on Satyashodak Facebook page. Satyashodak Facebook page. So anybody can watch it. And soon we will upload in YouTube so that everybody can watch. So it will be accessible to the public. So this will be a historical documentation, useful for everyone. So with this, we will continue to take the spirit and vision of the Ram Swarup Varmaji, his struggle, his vision, his writings, his spirit to fight against the exploitation, discrimination, and his vision towards egalitarian society. I think there is a need of discussing, writing, engaging with the Maharaj Singh Bharati, Ram Swarup Varmaji, Jagdev Prasad, Chandrika Prasad Jignasu, many anti-caste thinkers who contributed a lot. I think new generation of writers, scholars in university should do research on their writings, on their struggles, on their organizations, because universities neglected them for a long time. And new generation of people, particularly from the Bahujan communities, they should focus on these big personalities, visionary, missionary personalities, because if we don't engage, nobody will engage with them. So therefore there is a need to document their struggles, and it should be well researched. So with this note, on behalf of Satyashodak, so we thank Sri Bhagwan Swarup Katiyar ji for his insightful lecture. So we will continue to organize more lectures and anti-caste Shudra intellectual traditions. With this, I thank everyone. Thank you, Katiyar ji. Thank you very much. Thank you. Okay.